کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت محنت کی ہو، تمام صحیح تکنیکوں پر عمل کیا ہو اور پھر اچانک محسوس ہو کہ سب کچھ بکھر رہا ہے؟ جی بالکل. وہ پرانی منفی سوچیں واپس آ جاتی ہیں اور پریشانی پھر سے شروع ہو جاتی ہے؟ بالکل اسی وقت جب لگ رہا ہوتا ہے کہ اب سب ٹھیک ہو رہا ہے. ہاں، یہ بہت مایوس کن ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے 10 قدم آگے بڑھائے اور پھر پھسل کر واپس زمین پر آ گرے. صحیح کہا. تو آج ہم ایک ایسے باب کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں جو انہی مشکل دنوں کے لیے ایک ایمرجنسی کٹ کی طرح ہے. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس سے تقریباً ہر کوئی تعلق قائم کر سکتا ہے. اس باب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ بہت طاقتور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پرانی عادتوں کی طرف لوٹنا کوئی ذاتی ناکامی نہیں ہے. مطلب یہ کوئی کردار کی کمزوری نہیں ہے. اچھا. یہ اکثر مخصوص حالات جیسے تناؤ یا معمول میں تبدیلی کا ایک قدرتی رد عمل ہوتا ہے. تو اس باب کا مول پیغام یہی ہے کہ جب آپ راستے سے بھٹک جائیں تو خود کو الزام مت دیں، بلکہ کچھ کریں. جی بالکل. اس میں نہ صرف واپس آنے کا ایک منصوبہ ہے، بلکہ پریشانی اور منفی سوچ کو چند منٹوں میں روکنے کے لیے فوری ٹیکنیکیں بھی ہیں. مطلب ایک طرح کی فرسٹ ایڈ کٹ ہے یہ. مجھے یہ ایمرجنسی کٹ کا خیال بہت پسند آیا. تو آئیے اس کٹ کو کھولتے ہیں. مواد میں راستے پر واپس آنے کے لیے 3 مرحلوں کا ایک عمل بتایا گیا ہے. پہلا قدم ہے اصل وجہ کی نشاندہی کرنا. جی یہ سننے میں تو آسان لگتا ہے، لیکن شاید اتنا آسان نہ ہو. بالکل. اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عام طور پر ہم کسی ایسی وجہ سے راستے سے بھٹک جاتے ہیں جس پر ہم نے توجہ ہی نہیں دی ہوتی. مطلب کوئی چھپی ہوئی وجہ؟ ہاں، یہ کوئی بڑی واضح چیز نہیں ہوتی. یہ رشتوں کا تناؤ ہو سکتا ہے، یا کام میں ترقی نہ ہونے کی وجہ سے بوریت. کبھی کبھی بیماری، نیند کی کمی یا ماحول میں تبدیلی بھی. جیسے چھٹیوں پر جانا؟ بالکل. چھٹیاں جنہیں ہم آرام کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ بھی ہمارے معمولات کو توڑ کر ہمیں پرانی عادتوں کی طرف دھکیل سکتی ہیں. یہ نقطہ بہت گہرا ہے. عام طور پر ہم ناکامی کو ایک بند گلی سمجھتے ہیں، لیکن یہ مواد کہتا ہے کہ یہ ایک اشارہ ہے. صحیح. آپ کا بھٹکنا آپ کو بتا رہا ہے کہ یہاں دیکھو، یہ تمہاری کمزوری ہے. تو ہر ٹھوکر ایک سبق بن جاتی ہے. یہ ناکامی نہیں، یہ تحقیق ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. یہ ڈیٹا اکٹھا کرنے جیسا ہے. ہر بار جب آپ بھٹکتے ہیں، آپ کو اپنے ٹریگرز کے بارے میں ایک نئی معلومات ملتی ہے. اچھا. شاید آپ کو پتا چلے کہ جب آپ کافی نیند نہیں لیتے تو آپ کی منفی سوچیں بڑھ جاتی ہیں. تو پہلا قدم غصہ یا مایوسی نہیں، بلکہ جاسوسی ہے. ایک جاسوس کی طرح سراغ لگائیں کہ غلطی کہاں ہوئی. بالکل. ٹھیک ہے، تو پہلا قدم وجہ تلاش کرنا ہے. ایک بار جب وہ سراغ مل جائے تو دوسرا قدم کیا ہے؟ جب آپ وجہ جان لیتے ہیں تو دوسرا قدم بہت منطقی لگتا ہے. اپنے مثبت رویے کو دوبارہ شروع کریں. یعنی بنیادی باتوں کی طرف لوٹنا. جی. خود کو نرمی سے یاد دلائیں کہ زیادہ سوچنا بے سود ہے. ان عادتوں پر دوبارہ عمل کریں جو پہلے کام کر رہی تھیں، جیسے پریشانی کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کرنا یا مراقبہ کرنا. وری اسکیجول والی بات. جی وہی. یا ہلکی پھلکی ورزش. مقصد یہ ہے کہ دماغ کو آہستہ آہستہ ان مثبت راستوں پر واپس لایا جائے. بس شروع کریں. لیکن کیا ہوتا ہے جب وہی پرانی عادتیں کام نہیں کر رہی ہوتی؟ شاید زندگی بدل گئی ہو، یہ توانائی کی سطح پہلے جیسی نہ ہو. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تیسرا قدم آتا ہے، جو میرے خیال میں سب سے اہم ہے. ایک مختلف طریقہ آزمائیں. اچھا. اگر کوئی طریقہ کام نہیں کر رہا تو شاید اس کا وقت صحیح نہیں ہے. مواد میں اس کی بہت اچھی مثال دی گئی ہے. اگر آپ نے شام 6 بجے پریشانی کا وقت مقرر کیا ہے اور آپ اسے بار بار چھوڑ دیتے ہیں، تو شاید آپ اس وقت تک بہت تھک چکے ہوتے ہیں. بالکل. تو اسے دوپہر 3 بجے کرنے کی کوشش کریں. یا اگر صبح ورزش کرنے سے تناؤ محسوس ہوتا ہے تو سونے سے پہلے ہلکی سی واک کر لیں. یہ بات بہت اہم ہے، کیونکہ اکثر لوگ لچک کو نظم و ضبط کی کمی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک اعلیٰ درجے کی حکمت عملی ہے. یعنی اصولوں پر سختی سے قائم رہنا اہم نہیں، بلکہ ایسا نظام بنانا اہم ہے جو کام کرے. بالکل. زندگی ہمیشہ بدلتی رہتی ہے، تو ہمارے طریقے بھی اس کے ساتھ بدلنے چاہیے. مقصد سختی کے بجائے موافقت کا سبق ہے. تو یہ تو ہوئی طویل مدتی حکمت عملی، لیکن ان شدید پریشانی کے لمحات کا کیا کریں جب لگتا ہے کہ سب کچھ ہاتھ سے نکل رہا ہے؟
हाँ, वो 5 अलार्म वाली आग वाले लम्हात। जी, जब फौरी मदद की जरूरत होती है। और ये इस इमरजेंसी किट का सबसे अमली हिस्सा है। मवाद चंद ऐसी तकनीकें पेश करता है जिनका मकसद आपके जिस्मानी निजाम को एक झटका देना है ताकि परेशानी का सिलसिला रुक जाए। अच्छा, तो पहली तकनीक क्या है? पहली तकनीक 555 गेम है। ये ग्राउंडिंग तकनीक है। ग्राउंडिंग मतलब जमीन से जोड़ना? जी, आपको हाल में वापस लाने के लिए। जब दिमाग मुस्तकबिल के खौफ में भाग रहा हो तो उसे रोकने का ये पहला कदम है। तो ये कैसे काम करती है? आप जहां भी हैं अपने इर्द गिर्द देखें और 5 चीजों के नाम लें जो आप देख सकते हैं। मेज, कुर्सी, कुछ भी। फिर आंखें बंद करके 5 आवाजों पर तवज्जो दें। जैसे पंखे की आवाज? हाँ, या ट्रैफिक की। और आखिर में अपने जिस्म के 5 हिस्सों को हरकत दें। अपनी उंगलियां हिलाएं, अपने पांव जमीन पर महसूस करें। ये आपकी हिस्सियात को इस्तेमाल करके आपको हकीकत से जोड़ती है। अगला तरीका बहुत सादा लेकिन मौसर लगता है। जिस्मानी हरकत? जी, उछल कूद करें, घूमें या यहाँ तक के डांस करें। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई मंतिक है? इसके पीछे साइंस बहुत दिलचस्प है। जब हम परेशान होते हैं तो हमारा जिस्म लड़ो या भागो मोड में चला जाता है और खून में एड्रेनलिन शामिल हो जाती है। अच्छा। ये तवानाई भागने या लड़ने के लिए होती है। जब आप उछल कूद करते हैं तो आप जिस्म को वही देते हैं जो वो मांग रहा होता है। इससे वो केमिकल सिग्नल बंद हो जाता है और जिस्म को सुकून मिलता है। वाह, तो आप लफ्जी तौर पर अपने जिस्म के अलार्म सिस्टम को ये बता रहे हैं कि ठीक है, खतरा टल गया है। बिल्कुल। एक और तकनीक का जिक्र है, हिस्सी झटका। ये क्या है? ये भी जिस्म को इस्तेमाल करने का एक तरीका है। अपनी गर्दन पर ठंडा गीला कपड़ा रखें या एक लीमू का टुकड़ा खा लें। लीमू? जी, ठंडक या खट्टे जायके का शदीद झटका फौरी तौर पर दिमाग को परेशान कुन ख्यालात से हटा देता है। ये इतना शदीद एहसास होता है कि दिमाग के पास परेशान होने की गुंजाइश ही नहीं बचती। तो ये सब जिस्मानी हिकमत अमलियां हैं। क्या कोई फौरी ज़हनी हिकमत अमली भी है? जी हाँ, और वो है अपनी परेशानी से सवाल करना। सवाल करना? जब आपका दिल तेजी से धड़क रहा हो तो खुद से 2 सवाल पूछें। पहला, क्या ये एक झूठा अलार्म है? ज्यादातर वक्त तो ये झूठा अलार्म ही होता है। बिल्कुल। और दूसरा सवाल, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जब आप बदतरीन सूरत हाल का तसव्वुर करते हैं तो अक्सर वो इतनी बुरी नहीं होती जितनी आपके गैर वाज़े खौफ होते हैं। तो ये मंतिकी दिमाग को उस वक्त ऑनलाइन लाने की कोशिश है जब जज्बाती दिमाग काबू से बाहर हो रहा हो। जी, हमारा दिमाग बैक वक्त घबराहट की शदीद अलामात और मंतकी सवालात के जवाबात पर तवज्जो नहीं दे सकता। जब आप मंतिक को बीच में लाते हैं तो खौफ का जज्बा खुद ब खुद कमजोर पड़ जाता है। ये तो परेशानी के शदीद हमलों से निपटने के तरीके हुए। अब बात करते हैं उस ज़हनी बकवास की जो हर वक्त पसे मंजर में चलती रहती है। वो मनफी सोचें जो शायद घबराहट पैदा ना करें लेकिन दिन भर आपकी तवनाई खत्म करती हैं। जी बिल्कुल। इससे निपटने के लिए मवाद में क्या तरीके बताए गए हैं? पहला तरीका सबसे बरहे रास्त है, उसे काट दें। काट दे मतलब? जैसे ही कोई मनफी सोच आए, जैसे मैं ये नहीं कर सकती या लोग क्या सोचेंगे, अपने दिमाग में जोर से रुक जाओ चलाएं। इस सोच से बहस ना करें, बस उसे वहीं काट दें। लेकिन क्या ये एक तरह से सोच को दबाने जैसा नहीं है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ मकसद सोच को दबाना नहीं बल्कि उसमें उलझने से इनकार करना है। लेकिन अगर ये तरीका काम ना करे तो दूसरा तरीका है ख्यालात को लेबल करना। लेबल करना? जी, तस्लीम करें कि ये सिर्फ एक मनफी सोच है और खुद से कहें ये सिर्फ एक मनफी सोच है और मुझे इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इससे आपको उस सोच से एक फासला बनाने में मदद मिलती है। आप सोच के साथ बहने के बजाय उसके मुसब्बिर बन जाते हैं। बिल्कुल, जैसे आप सड़क किनारे खड़े हैं और गाड़ियों को गुजरता देख रहे हैं, बजाय इसके कि हर गाड़ी के पीछे भागें। वाह, इसमें एक और तकनीक है जो बहुत दिलचस्प लगी। ख्यालात को बड़ा चढ़ाकर पेश करें। हाँ, ये मेरी पसंदीदा टेक्निकों में से एक है। मवाद में मिसाल दी गई है कि अगर आपको लगता है कि आप बेवकूफ़ हैं तो आप कहें मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि एक बल्ब भी नहीं लगा सकता, और फिर मैं कंगारू की तरह उछलने लगूंगा। जी, उसके पीछे नफ्सियात ये है कि मजाक खौफ का बेहतरीन तिर्याक है। खौफ संजीदगी में पनपता है तो आप उसकी ताकत छीन लेते हैं। बिल्कुल, आप अपने दिमाग के ड्रामे को एक कॉमेडी शो में बदल देते हैं।
ये इतना मजाकिया खेज हो जाता है कि असल खौफ खुद ब खुद छोटा लगने लगता है। ये वाकई एक जबरदस्त टेक्निक है। इसके बिल्कुल बरक्स एक और टेक्निक का जिक्र है, मुकाबला करना। ये कैसे काम करती है? ये बहुत सीधा सादा तरीका है। जब आपका दिमाग कहे मैं काफी अच्छी नहीं हूं, तो आप फौरन कहें मैं हमेशा काफी अच्छी रहूंगी। यानी मनफी सोच को बहस का मौका ही न दें। जी। जब दिमाग कहे मैं नाकाम हो जाऊंगा, तो आप जवाब दें मैं कामयाब होने की पूरी कोशिश करूंगा। ये आपके दिमाग को मनफी सोच पर गौर करने की बजाय एक मस्बत बयान पर मजबूर करता है। तो ये सिर्फ मनफी को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि फाल तौर पर उसे मुस्बत से बदलने के बारे में है। ये हमें आखिरी टेक्निक की तरफ लाता है, जो कि मुस्बत तस्दीकात हैं। बिल्कुल। मवाद तजवीज़ करता है कि हर एक मनफी सोच के लिए 2 मुस्बत तस्दीकात पेश करें। ये रियाजी का खेल है। मनफी के मुकाबले में मुस्बत को 2 गुना वजन देना। जी। तो अगर दिमाग कहे मैं ये नहीं कर सकती, तो आप जवाब दें मैं चैलेंजेस का सामना करने की हिम्मत रखती हूँ और मैं हर रोज कुछ नया सीखती हूँ। वक्त के साथ ये दिमाग को दोबारा तरबियत देने जैसा है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस सारी गुफ्तगू को समेटे तो इस गाइड से हासिल होने वाले अहम नुकात क्या है? जी। पहला और सबसे अहम नुक्ता जो मेरे जहन में आया वो ये है कि पुरानी आदतों की तरफ लौटना नाकामी नहीं, बल्कि किसी वजह का रद्द अमल है। बिल्कुल। और इस वजह को एक जासूस की तरह तलाश करना है, खुद को मुजरिम नहीं समझना। दूसरा बड़ा नुक्ता लचक की अहमियत है ना? जी। अगर कोई तरीका काम नहीं कर रहा तो उसे तब्दील करें, हिम्मत ना हारें। तीसरा, दिमाग को पुरसुकून करने के लिए अपने जिस्म का इस्तेमाल करें। हमारा जिस्म और दिमाग जुड़े हुए हैं। ग्राउंडिंग, हिस्सी झटके और जिस्मानी हरकत जैसे तरीके इस्तेमाल करके आप अपने दिमाग को फौरी तौर पर पुरसुकून कर सकते हैं। और आखिर में मनफी ख्यालात को गैर फाल तौर पर ना सुने, उनके साथ फाल तौर पर निपटें। जी। उन्हें काटें, लेबल करें, उनका मजाक उड़ाएं या उन पर पॉजिटिव सोचों से गलबा हासिल करें। आप अपने दिमाग में चलने वाली गुफ्तगू के महज एक सामे नहीं हैं, आप इसके डायरेक्टर हैं। फराहम करती है, जो बहुत अहम है, लेकिन ये सामीन के लिए गौर करने के लिए एक गहरा सवाल भी उठाती है। वो क्या है? अगर हम इन नाकामियों को नाकामी के बजाय सीखने के मौके के तौर पर देखना शुरू कर दें, यानी हर बार जब हम भटकते हैं हम अपने ट्रिगर्स के बारे में कुछ नया सीखते हैं, तो ये न सिर्फ परेशानी पर काबू पाने में बल्कि जिंदगी के हर शोबे में ज़ाती तरक्की के बारे में हमारे पूरे नुक्ते नज़र को कैसे बदल सकता है। ये नाकामी को तहकीक में बदलने का फन है। बिल्कुल।